Hello students, very warm welcome to you this session. Welcome to Edifly JNEET Prabal batch. Today I am going to discuss about the reproductive health, that is the last part of this chapter, that is medical termination of pregnancy, and about the sexually transmitted infections. Okay, with this I'll conclude this chapter today, and from the next class I'll start the new chapter. Okay, so let's begin today's session. ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट इज व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. यू नो द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन मतलब स्टॉप कर देना. दैट मीन्स if any couple doesn't want the pregnancy to continue, in that case that pregnancy has to be terminated, or you can say that pregnancy has to be stopped. Okay, so the definition says intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy. That means if a person has an intention to stop their pregnancy, voluntary means it's under the control so that the pregnancy can be stopped or can be terminated. Before means जब तक पूरा full complete pregnancy नहीं होता है उसके पहले ही इसको complete कर देना. That means terminate कर देना है, has to stop this pregnancy. Okay, this is known as the medical termination of pregnancy, or it has another terminology, that is induced abortion. That means the abortion is induced, abortion को induce किया जा रहा है ताकि वो completely हो जाए. So that is known as MTP, that is medical termination of pregnancy. Okay, and this is the data wise nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. That means this is the overall data which suggests that in a world, in a year, actually in a year the data has been prepared. In a year 40 to 50 million people or the couples, they has to go for MTPs. Okay, MTP has a significant role in decreasing the population, though it is not meant for that purpose. Okay, see, MTP has, if a person doesn't want the pregnancy, if she is terminating her pregnancy, that means it has an important role in decreasing the population, but that doesn't mean that through MTP you have to decrease the population. MTP is for those who don't want the child to come into this world. If that child has any kind of, or if that baby has any kind of abnormalities, chromosome abnormalities, so that child shouldn't be brought to this world. In that case, medical termination of pregnancy is required. Okay, that doesn't mean that you are going to control the population or you are going to decrease the population. Okay, next is Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2017. So this according to this Amendment Act, there are some important features of this act which I am going to discuss with you all. First, it was enacted by the Government of India. Okay, तो ये 2017 का जो एक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसको लीगलाइज किया था, with the intention of reducing the incidence of reducing illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. That means ये जो MTP, इसके थ्रू ये अमेंडमेंट में ये होता है कि हमें परमिशन लेके उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है. दैट इज नॉट इलीगल अबॉर्शन. इफ यू आर गोइंग फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, यू हैव टू टेक अ लीगल appropriate permissions. Okay, if anyone going for the MTP, that is medical termination of pregnancy. Okay, Government of India legalized MTP in 1971 to some strict conditions to avoid its misuse. गवर्नमेंट सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लीगलाइज किया था एमटीपी को, इट वाज इन 1971. ओके, फॉर योर इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर, टू सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस. बहुत सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस इस अमेंडमेंट में आई थी ताकि ये जो एमटीपी है इसका मिसयूज ना किया जाए, इसका गलत प्रयोग ना किया जाए. ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अमेंडमेंट दिया था. ठीक है, नेक्स्ट, सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू चेक
indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India. और ये उन लोगों के लिए जो कपल अगर फीमेल चाइल्ड नहीं चाहते हैं, इफ दे डोंट वांट अ फीमेल चाइल्ड, सो विद this act is not recommended to those person who want female feticide, okay, that is illegal and which are very much reported to be high in India. If anyone has the information of the sex or the sex of that baby, if she is a girl child and if that family doesn't want the girl child, she has to go for MTP, but that is illegal and that is totally banned in India. But there are some illegal things already going in India जो होता ही रहता है अक्सर, so that can't be stopped. Whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. ये जो MTP है बहुत जगह लीगलाइज नहीं हुआ, बहुत जगह एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है. इंडिया में इसका अमेंडमेंट को लाए गवर्नमेंट ने, बट होता है कहीं इसकी अच्छे तरीके से इसको अप्रूव किया जाता है या माना जाता है, बहुत जगह इलीगली चलता है ये काम, ठीक है ना. वेदर टू एक्सेप्ट टू लीगलाइज MTP, जैसे कि अगर एक्सेप्ट करना है या इस MTP को लीगल करना है, लीगल तरीके से इसकी प्रोसीड्यूर को करना है, बहुत सारी कंट्रीज में इमोशनल हो या इथिकल या रिलीजियस इशू के कारण इसको नहीं एक्सेप्ट किया है, बहुत सारी कंट्रीज में MTP को नहीं एक्सेप्ट किया है, ठीक है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, अबाउट दिस और डिटेल्स में पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस द Act, a pregnancy may be terminated on certain considered ground within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner. See, a female can't take the decision herself that she has to terminate her pregnancy, okay. So in that case what happens is that if a female has completed her first trimester, that is 12 weeks, so before 12 weeks that female can go for MTP, that is medical termination of pregnancy, and that requires a professional medical practitioner. He or she will guide that female in order to go for MTP or not, okay. If the pregnancy has lasted for more than 12 weeks, अगर 12 weeks से ज़्यादा pregnancy last हो चुका है या 24 weeks से less than 24 weeks, अगर 24 weeks से कम है, 12 weeks से ज़्यादा, that is mid between 20 to 24, okay, then 2 registered medical practitioners must be of the opinion formed in good faith that a required ground exist. तो उसमें क्या होता है, जब एक फीमेल 12 वीक क्रॉस कर जाती है, 12 वीक्स में उसके बेबी के सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, आफ्टर 12 वीक्स क्या होता है कि ये जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा इंक्लूड हो जाता है. अगर वो फीमेल MTP के लिए जाती है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो सिर्फ सिंगल प्रैक्टिशनर इसको डील नहीं कर सकता. उस केस में हम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लेनी चाहिए कि हमें कैसे इसको अबॉर्ट करना है, ठीक है ना. नेक्स्ट, द ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन ऑफ सच प्रेगनेंसीज आर, the important ground, or you can say important point of this pregnancies are the 2 important point. If continuation of pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave physical or mental injury, अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से प्रेग्नेंट वुमेन का लाइफ रिस्क होता है, तो ये केसेस, ये MTP का स्टेप उठाया जाता है, ठीक है. दूसरा, there is a substantial risk that if the child is born it will suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped. तो इन सब केसेस में क्या होता है, अगर वो लेडी जो प्रेग्नेंट है, if she has a risk on her own, in that case MTP को फॉलो किया जाता है, मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, क्योंकि अगर वो बच्चा जन्म होता भी है तो उसे किसी तरह के फिजिकल, मेंटल या फिजिकली या सीरियसली हैंडीकैप बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना. उस केसेस में मेडिकल प्रैक्टिशनर को डिसीजन लेना पड़ता है कि शी हैज टू गो फॉर MTP, ओके. नेक्स्ट इज MTP इज डन टू गेट rid of unwanted pregnancies either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rapes. ओके, MTP कब किया जाता है, जब प्रेगनेंसी को नहीं चाहते हैं या कोई एक परफेक्ट रीजन होना होगा कि वाई शी डजंट वांट दैट चाइल्ड, ओके. दैट माइट बी इफ द चाइल्ड हैज एनी काइंड ऑफ क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज, एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट इन दैट बेबी, लाइक अगर कोई ऑर्गन्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं है या किसी तरह की कोई बीमारी उस बेबी में है, दिस वी कैन नो विद द हेल्प ऑफ एमनायोसिंथेसिस, ओके. सो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है उस बेबी में, तो इट्स बेटर नॉट टू ब्रिंग दैट चाइल्ड. इन दैट केस MTP इज टू बी फॉलोड, ओके. और इन केस ऑफ रेप, अगर रेप के केसेस में
अगर इफ दैट फीमेल हैज कंसीव्ड और इफ शी डजंट वांट दैट चाइल्ड, इन दैट केस दैट हैज टू बी रिमूव्ड। तो उस बेबी को कैसे, सपोज दिस इज यूट्रस, ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू द डायग्रामेटिकली, ये यूट्रस है, बेबी यहाँ रहेगा, ठीक है, दिस इज विजाइना, यू कैन से सर्विक्स, ओके। तो क्या होता है, यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट लगा के इस बेबी को खींचा जाता है, ओके, शी हैज दैट बेबी हैज टू टेकन आउट फोर्सफुली, इन दैट वे दैट एम्पटी इज डन, और यू कैन से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन बेसिकली यू कैन से, ठीक है। तो यहाँ से इस बेबी के पूरे जो भी ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, फुल हेयर, हेड एंड एवरीथिंग हैज टू बी टेकन आउट थ्रू द vagina, okay. MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful to even fatal either to the mother or to the fetus or both. तो MTPs उन सब केसेस में भी वैलिड होता है अगर वो लेडी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है तो या तो मदर और फीटस दोनों को खतरा है। इन दैट केस doctor will always suggest that you should go for the MTP. It's better not to keep that baby, okay. Next, MTPs are considered relatively safe during the first trimester, that is up to 12 weeks. MTPs, that is UK medical termination of pregnancy, ज़्यादातर सेफ 12 वीक्स तक ही होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्क ज़्यादा हो जाता है फॉर द मदर एंड ऑल्सो फॉर द चाइल्ड, ठीक है ना। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस जो है मच मोर रिस्कियर होता है, चाहे वो बेबी हो चाहे वो मदर हो, ओके। सो इट्स बेटर दैट यू कैन गो फॉर द एबॉर्शन बिफोर 12 वीक्स, ओके। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। One disturbing trend observed is that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड नहीं हैं, दे आर नॉट द प्रोफेशनल्स बट स्टिल दे आर डीलिंग दिस काइंड ऑफ MTPs लाइक इलीगली वो क्या करते हैं, और इलीगल कोई भी काम सेफ नहीं होता है, वो बेबी के लिए भी अनसेफ हो सकता है और मदर के लिए भी अनसेफ हो सकता है, एंड इट कैन बी डेंजरस, ओके। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. See, amniocentesis के through a female can know the sex of their child, but it's banned in India. Okay, ये ban है, हम sex of the child नहीं जान सकते, whether it's a boy or girl. Okay, बहुत लोग ये illegally ये काम करते हैं, लेकिन बहुत जगह ये ban हो चुका है. Amniocentesis is only performed to know whether that child has any chromosome abnormalities or any genetic problem. बस उसी को जानने के लिए amniocentesis की टेस्ट प्रीफर की जाती है फ्रॉम द डॉक्टर, नॉट टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। बट ये क्या होता है, मिसयूज होता है, हर बहुत जगह मिसयूज होता है। वो जान लेते हैं कि अगर फीमेल है, अगर फीमेल को नहीं रखना है तो फीमेल को गिरा देना, दैट इज अबॉर्ट कर देना, राइट। Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. तो बहुत जगह ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, छोटे मोटे अपना खोल के ओपन कर लिए और ये सब धंधा उनका चलता है। अगर वो फिटस फीमेल है तो बच्चे गिरा देते हैं वहाँ और किसी को पता नहीं लगता है, एंड दैट इज इलीगल, ओके। सच प्रैक्टिस, इफ सच प्रैक्टिसेस इज परफॉर्म्ड बाय देम, देन a legal action can be taken against them, okay. Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो मेडिकल प्रैक्टिस ये प्रोफेशनल्स नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं है, हम कुछ भी करेंगे चलो ठीक है, लेकिन वो बाद में या उस टाइम के लिए सही भी रहा तो आगे जाके मदर के लिए, फिटनेस के लिए बहुत रिस्की हो जाता है ना। नेक्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज डन। STIs, STI क्या होता है, इन्फेक्शंस which are transmitted through sexual intercourse are collectively called as। तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई कपल करते हैं तो उस टाइम ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एक दूसरे से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। सो इट्स ऑलवेज प्रीफर्ड टू यूज एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक कॉन्डम। अगर कोई कॉन्डम यूज करता हो तो देयर आर नो चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ STIs, ओके। सो और यू कैन से इट्स वेनरल डिसीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस हो जाना को STIs कहते हैं, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो क्या क्या होते हैं इसमें, एक गोनोरिया है, स्पाइलिसिस है, जेनिटल हर्प्स है, क्लैमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमेनियासिस, हेपेटाइटिस बी, HIV लीडिंग टू एड्स। तो ये सारे जो है STIs में आते हैं। ये सारे बहुत खतरनाक बीमारी है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बेसिकली होते हैं, और वो कब होते हैं, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ही वो होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शंस अगर हो गया
तो होता है, ठीक है। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted. सबसे important जो hepatitis B और जो HIV है वो कैसे इन्फेक्ट होते हैं ये आपको जानना है। अगर शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, अगर किसी को इंजेक्शन उसे लग चुका है, कोई भी इंजेक्शन हो, सिंपल टीटनस का ही पकड़ लीजिए, तो अगर उसी इंजेक्शन से, उसी सिरिंज से किसी और को जाता है एंड यू डोंट नो वेदर दैट पर्सन हैज HIV और हेपेटाइटिस बी, इन दैट केस शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स कैन बी फैटल फॉर दैट पर्सन, मतलब ट्रांसमिट हो सकता है हेपेटाइटिस बी के वायरस और HIV वायरस, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि अगर किसी तरह की कोई सर्जरी या सिंपल माइनर कट हो या कुछ भी, तो अगर कैंची भी यूज कर रहे हैं, दैट हैज टू बी प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड विद हेल्प ऑफ अल्कोहल। थोड़ी भी इन्फेक्शंस नहीं होना चाहिए of that person. You don't know whether that person blood has any kind of infections or not. Okay, so surgical instruments को purely अच्छे से साफ करके यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर उसे कंटेमिनेटेड यूज करेंगे तो हर तरह की बीमारी हो सकती है, हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV और बहुत सारे ऐसे बीमारी जो फैल सकती हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर that blood is completely pure or not. If it is infected with any kind of virus or bacteria, that blood hasn't to be transfused. अगर ट्रांसफ्यूज कर देगा तो उस पेशेंट का जान खतरे में, ठीक है। From an infected mother to the fetus, अगर मदर को किसी तरह के इन्फेक्शन है तो फीटस तक पहुंचने का बहुत चांसेस होता है, तो अगर मदर को इन्फेक्शन है तो that has to be treated first. Okay. Next, except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated well. देखो, hepatitis B, genital herpes और HIV, ये इन तीनों का कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है। It will take the life of that person. इसके अलावा और जो भी डिजीजेस हैं वो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाए, कैंसर भी अगर बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, एकदम स्टार्टिंग है, देन इट कैन बी क्यूरेबल। लेकिन अगर वो एक्सट्रीम स्टेज तक पहुंच गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दैट कांट बी क्यूरेबल। ओके, अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दिस आर माइनर एंड इंक्लूड, जो अर्ली सिम्टम्स है वो बहुत माइनर होते हैं। और क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि इचिंग, इंसान सोचेगा इचिंग है, कुछ नहीं यार, लेकिन उसको भी इंसान को सीरियसली लेना होगा। व्हाई इट इज इचिंग, यू हैव टू गो टू द प्रॉपर ट्रीटमेंट, गो टू द प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर वेदर ही और शी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन है, स्वेलिंग से किसी तरह की सूजन है, हल्की से पेन है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, इस केसेस में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। जो फीमेल्स इन्फेक्टेड होती हैं वो उनमें कोई सिम्टम्स भी नहीं शो करता है, ठीक है, और बहुत समय तक, लंबे समय तक उनमें डिटेक्ट नहीं होता है। फॉलोइंग फैक्टर्स डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसको, जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं, तो अगर वो टाइमली ट्रीटमेंट के लिए जाए या डिटेक्ट हो जाए उनका, तो इसको हम क्योर कर सकते हैं। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीडीज, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स प्रेजेंट है, अगर बहुत शुरुआत के इन्फेक्शन में ही उसको पता चल जाए कि सिम्टम्स है कि नहीं है, तो इसको हम पता कर सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, पेल्विस जो है नीचे का पोर्शन वो इन्फेक्शन हो जाएगा। एबॉर्शन है, स्टिल बर्थ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जहाँ प्रेगनेंसीज होते नहीं है, मतलब फीमेल कैन कंसीव। इनफर्टिलिटी, बिल्कुल भी एग रिलीज नहीं होता है फीमेल से, एग बनता ही नहीं है। कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का भी कैंसर होता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर कोई भी सिम्टम्स आए, यू शुड गो टू द डॉक्टर, ओके। Complications of sexually transmitted infections. STIs are a major threat to healthy society. STI जो है एक बहुत important जो है major threat है society के लिए. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program. तो जब भी ये reproductive health care programs होते हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि अगर किसी को STI की थोड़ी भी सिम्टम्स आ रही है तो उसको बहुत अर्ली दिखाया जाए ताकि उसको डिटेक्ट किया जाए, उसको क्योर भी किया जा सकता है, ठीक है। दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शंस,
Their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years, the age group to which you also belong. देखिए, ऐसा तो ये STIs हर किसी को हो सकता है. Almost many of the persons are vulnerable to these infections. लेकिन क्या होता है, रिस्क फैक्टर नाम की चीजें आपने सुनी होंगी, ठीक है ना. रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये 15 to 24 इयर्स के एज ग्रुप पे ही ज्यादा ये जो है ना STI ज्यादा होते हैं. उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज होता जाता है, ठीक है ना. यू कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शंस इफ यू फॉलो द सिंपल प्रिंसिपल्स. अगर ये इन्फेक्शंस को नहीं चाहता है तो ये सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें, दैट इन्फेक्शंस वॉन्ट बी स्प्रेड. ओके, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स. दैट इज सेक्स अननोन पार्टनर्स के साथ नहीं करना है, अपने पार्टनर के साथ करिए. मल्टीपल पार्टनर के साथ बिल्कुल ना करिए. मल्टीपल पार्टनर के साथ करने से ये STIs के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है. ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कॉर्टेज, दैट इज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. कॉन्डम शुड बी यूज्ड. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. In case of doubt, go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with this. अगर कोई डाउट है किसी तरह के कोई थोड़े भी इन्फेक्शन से, go to the qualified doctor who is the professional of that part. तो अर्ली डिटेक्शन होने के बाद कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है इसको हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्लैमाइडियासिस. इट इज कॉज्ड बाय पैथोजन क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिसिस. तो ये जो कॉजेटिव एजेंट है ये आपको याद रखना है नीट एग्जाम के पर्पज से भी और आपको जानना भी है. क्लेमाइडियासिस दैट यूजुअली इन्फेक्ट्स, कहाँ इन्फेक्ट करता है ये, जेनाइटल्स, मतलब बहुत रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मैन एंड वुमेन दोनों में इन्फेक्ट करता है क्लेमाइडियासिस. तो कौन करता है, दैट इज क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस. बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट थ्रोट, रैक्टम, आइज. थ्रोट गले को भी, रैक्टम और आइज इन तीनों को भी इन्फेक्ट करता है जेनाइटल्स के अलावा. सिम्टम्स इन वुमेन क्या है, अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज, हमेशा वेजाइना से डिस्चार्ज होते रहे. अनयूजुअल, जब जरूरत नहीं है बॉडी से ऐसे निकल रहा है तो ये मतलब इन्फेक्शन हो गया इसी वजह से. पेन और ए बर्निंग सेंसेशन, अगर यूरिन पास होने में थोड़ी सी भी पेन होती है, जलन हो रहा है तो ये क्लेमाइडियासिस का है. ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स के बीचों बीच ब्लीडिंग होना, सेक्स के टाइम पे पेन होना और ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना, तो ये क्लेमाइडियासिस का जो है सिम्टम्स है. लो एब्डोमिनल पेन समटाइम्स विद नोजिया, वोमिटिंग टाइप आना और लोअर एब्डोमिनल में थोड़ा सा पेन होना, ठीक है. क्लेमाइडिया के सिम्टम्स मैन में क्या होता है, व्हाइट और क्लाउडी वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द टिप ऑफ द पेनिस. दैट मीन्स व्हाइट डिस्चार्ज कहाँ से होगा, पेनिस के टिप से होगा, व्हाइट क्लाउड टाइप कलर. ओके, पेन और ए बर्निंग सेंसेशन सेम लाइक इन फीमेल, अगर यूरिन पास होता है तो पेन होता है या जलन जैसी होती है. टेस्टिकुलर पेन एंड स्वेलिंग, टेस्टिस जो वहाँ पे पेन होना और या तो टेस्टिस जो है स्वेलिंग कर जाना, दैट इज द सिम्टम ऑफ क्लैमाइडिया. ओके, नेक्स्ट इज गोनोरिया, दिस इज नॉन एज क्लैप. It is caused by Neisseria gonorrhoeae. So this causative agent you have to remember. Okay, the nickname of the clap refers to a treatment that was used to clear the blockage in the urethra from gonorrhea pus. तो ये जो निकनेम दिया हुआ है ना क्लैप का, ये क्यों पड़ा है इसका, क्योंकि इसका मतलब होता है इट रिफर्स टू ट्रीटमेंट. ये ट्रीटमेंट का नाम है जब यूरेथ्रा से गोनोरिया पस को निकाला जाता, ब्लॉकेज को क्लियर करना जाता था, इसलिए इसका नाम क्लैप पड़ा. इन दिस ट्रीटमेंट पेनिस would be clapped on both sides simultaneously. ये ट्रीटमेंट क्या होता है, पेनिस को दोनों साइड पे क्लैप्ड किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज गोनोरिया का सिम्टम्स वुमेन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज दैट मे बी थिन एंड वाटरी और थिक एंड येलो और ग्रीन. गोनोरिया का जो स्मेलिंग, बहुत स्मेल सा एक वेजाइनल डिस्चार्ज होगा जो थिन वाटरी जैसा होगा या तो थिक होगा, येलो और ग्रीन कलर का, ठीक है. Irritation or discharge from the anus, abnormal vaginal bleeding, pain or a burning sensation when passing urine, low abdominal pain sometimes with nausea. Pain होगा, abdominal pain होगा, vaginal bleeding होगा, that is abnormal, और irritation होगा, खुजली टाइप होगा anus में, या फिर strong smelling, एक गंदा सा foul smell, vaginal discharge होगा, ठीक है. नेक्स्ट सिम्टम्स इन मैन क्या है, व्हाइट, येलो और ग्रीन थिक डिस्चार्ज फ्रॉम द टिप ऑफ द पेनिस. व्हाइट या तो येलो या तो हरा, ये तीन कलर के ठीक बहुत मोटा डिस्चार्ज होगा, कहाँ से, पेनिस के टिप से. इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का. इरिटेशन और डिस्चार्ज फ्रॉम द एनस. यूरेथ्रल इच एंड पेन ऑफ बर्निंग सेंसेशन व्हेन पासिंग यूरिन. इरिटेशन होगा एनस पे
और टेस्टिकल्स, जो टेस्टिस है वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी इन्फेक्ट हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्पिक्स, ओके, ये भी हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। बोथ हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1, वायरस 2 may be transmitted through sex or by kissing or touching any affected area। ये हार्पिस वायरस कैसे ट्रांसमिट होते हैं? सेक्स के थ्रू होंगे या किसिंग, कोई जेनिटल एरिया किसी जगह पे अगर ये हार्पिस वायरस है वहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं। अगर किसिंग कर दे या टचिंग, जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे टच करने से हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फैल सकता है। A condom can prevent herpes transmission during vaginal or anal sex, but oral contact with genitals or open sores anywhere can spread the disease। तो इसलिए oral contact with the genitals is avoided, वो नहीं करना चाहिए। That is really bad. This type of diseases, herpes can be spread, okay? तो condom अगर use करते हैं couples तो during the vaginal or anal sex, in that case what happens is that वो जो है ना हम प्रिवेंट कर सकते हैं हर्पेस को। लेकिन अगर ओरल कांटेक्ट होता है बिटवीन द जेनिटल्स, उस केस में डिजीज स्प्रेड होता है। वॉशिंग हैंड्स कैन मिनिमाइज द ट्रांसमिशन। हाथ धो के, अगर हाथ धो सकते हैं तरीके से, क्लियर हो सकता है, तो ट्रांसमिशन की चांसेस कम होती हैं, राइट। सिम्टम्स क्या होता है? हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1 यूजुअली शोज अप एज कोल्ड सोर्स और ब्लिस्टर्स। सिंपल का सिम्टम्स कैसा होता है? कोल्ड सोर्स और ब्लिस्टर्स, ऐसे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स जैसे होते हैं स्किन पे, छोटे छोटे, ठीक है। फॉर दोज हु हैव हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 2, some have no symptoms while others may show signs of an infection 5 to 20 days after having sex with the infected partner। जिनके पास हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 2 है वो सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं बहुत दिनों तक, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन है और अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं तो 20 डेज के अंदर जो है क्या होता है, उन्हें सिम्टम्स शो करते हैं हर्पेस का, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स, बहुत शुरुआती के सिम्टम्स कैसे होंगे? बर्निंग सेंसेशन जेनिटल्स में, लो बैक पेन, पीछे पेन होगा, यूरिनेशन के टाइम पे पेन होगा, फ्लू जैसे सिम्टम्स होगा, रेड बम्स अपीयर अराउंड द जेनिटल्स, छोटे छोटे रेड कलर के बम्स होंगे। बम्स बिकम पेनफुल ब्लिस्टर्स व्हिच देन क्रस्ट कवर फ्रॉम स्कैब एंड हील। और पेनफुल, बहुत घाव जैसा हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको हील करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्पाइलेसिस क्या है? कॉजेटिव एजेंट इज ट्रेपोनेमा पैलिडियम। तो आपको ये ट्रेपोनेमा पैलिडियम बहुत तरीके से याद रखना है। इट कैन क्रॉस प्लासेंटा, प्लासेंटा को भी क्रॉस करता है। स्पाइलेसिस बहुत ही खतरा होता है, प्लासेंटा को भी क्रॉस कर देगा, तो जो अगर बेबी वॉर्म में है तो वो भी इन्फेक्शियस हो सकता है, राइट। जेनिटल वॉर्ड्स, दिस आर कॉज्ड बाय सम सब टाइप्स ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये इंपॉर्टेंट है। जेनिटल वॉर्ड कौन करता है? पैपिलोमा वायरस। दे कैन अपीयर ऑन द स्किन एनीवेयर इन द जेनिटल एरिया एज स्मॉल व्हाइटिश फ्लैश कलर्ड बम्स और लार्जर फ्लैशी कॉलीफ्लावर। कैसे होते हैं वो? स्किन पे, कहीं भी जेनिटल एरिया पे बड़े बड़े व्हाइट कलर के, फ्लैश कलर के बड़े बड़े बम्स हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कॉलीफ्लावर जैसे शेप हो जाता है। इफ ए वुमन हैज अ वॉर्ड ऑन द सर्विक्स, शी मे एक्सपीरियंस स्लाइट ब्लीडिंग और अनयूजुअल कलर्ड वेजाइनल डिच। अगर उस वुमन के सर्विक्स एरिया में, जो जहाँ पे पेनिस जाएगा, वहाँ पे अगर उसको किसी तरह के जेनिटल वॉर्ड्स है तो उसमें हल्की सी ब्लीडिंग या कलर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज होगा उसे, ठीक है। जेनिटल वॉर्ड्स ये भी खतरे वाला है, ओके। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है, कि हम कितना पढ़े हैं, कितना अच्छे से पढ़े इस चैप्टर को। क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद हम नए चैप्टर जेनेटिक्स पढ़ाने वाले फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आई वांट यू ऑल टू अटेंड माय क्लास, ओके। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ करिए, ताकि उनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिस हो रहा है उनको मिल सके, ठीक है। एंड अपना प्रिपरेशंस बेस्ट रखिए, राइट। सो विद दिस आई विल कंक्लूड माय क्लास टुडे। थैंक यू सो मच।